So first वाला clear है सभी को? Steam at 100 degree centigrade is passed into 22 grams of water at 20 degree centigrade. When resultant temperature is 90 degree centigrade, then the weight of the water present in is how much? मैंने पहले क्या किया, मैंने assume किया mass of the steam which has been condensed or maybe convert हुआ, मान के चलो m है, तो मैंने have taken the heat lost by the hot body is equals to heat gained by your cold body. ठीक है ना? तो m into your L of your latent heat is equals to mass of your steam into specific heat of water 1 into temperature difference 100 minus of your कितना है 90, that will be equal to 10. Then mass of water is 22 grams, specific heat of water is 1, and the water is at 20 degrees centigrade, and the resultant temperature is 90. So 90 minus 20, that will be equal to your 70. 22 into 70 is 1540. ये कितना हो जाएगा 550 m. Simplify कर लिए तो mass of the steam which is condensed into water is how much for me? 2.8 grams. So this much amount of water is steam has been condensed into the water. So total weight of the water मतलब 22.28 यानी 24.8 ग्राम. आया सभी को ये क्वेश्चन? चलो 46 देखो बेटा. Steam is passed into a calorimeter with a water having a total thermal capacity 11 ये कर रहे हैं ना हम लोग. Question number 46. हाँ. Steam is passed into a calorimeter with water having the total thermal capacity 110 calorie per gram and initial temperature is 30 degrees centigrade. If the resultant temperature is 90 degrees centigrade, then increase in the mass of water will be equal to how much? कोई बता सकता है? Steam is passed into the calorimeter. ये मान के चलो ये कुछ calorimeter है vessel में. Steam is passed into the calorimeter. Steam is being passed into the calorimeter with water having a total thermal capacity. Thermal capacity मतलब ms. ms is equals to 110 calorie per your gram. And initial temperature is your 30 degrees centigrade and resultant temperature is equals to 90 degrees centigrade. The increase in the mass of water will be equal to your how much? बताओ जल्दी से. ms into your delta t. टेम्परेचर डिफरेंस मतलब 90 minus 30. ये कितना हो जाएगा बेटा? 90 minus of your 30 is equals to mass of your steam into your latent heat of the steam is 540 plus mass of your steam into have specific heat of water is 1 into temperature will be equal to how much बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 'स्टीम कितने टेम्परेचर पे रहता है बेटा? 100 minus 90 that will be equal to 10. तो ms की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रॉब्लम में? 110. This is your 110 into your 60 is equals to mass of steam मान के चलो मेरे पास 540 into your m है plus this will be equal to 10 times of m यानी this will be equal to 540 into your mass of steam. तो कितना बन रहा है देखो बेटा, यहाँ पर एक 0 और ये इसमें कितना हो जा रहा 540. हाँ तो ये कितना आ रहा देखो जल्दी से. टेम्परेचर 10 कैसे लिए बेटा स्टीम की कौन सी टेम्परेचर पे रहता है बेटा? स्टीम इज ऑलवेज एट योर हायर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये टेम्परेचर रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना है उसका? 90 है ना. 100 माइनस ऑफ योर 90. ओके सर. इजंट इट? तो कितना आ रहा देखो 110 into 60 कितना? $6,660. 6,600 इज इक्वल्स ये कितना है 550 m. तो ये वाला चले गया. सो इट इज 660 डिवाइडेड बाय 55 दैट विल गिव मी द m. कितने में जा रहा देखो? कितना आ रहा? 12 आंसर. So 12 grams will be the answer. आई बात समझ में? आ गया? यस सर. यहाँ पर अगर आप लोग को तकलीफ हो रही है तो इसको आप लोग लिख लीजिए 100 माइनस ऑफ 90. ठीक है चलो 48 तो आप लोग को मैंने कराया है, मैं करा रहा हूँ नहीं एक्चुअली ये मॉडल मैंने क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ. 3 liquids A, B and C of masses 400, 600 and 800 are at temperature 30, 40, 50 respectively and A and B are mixed
टेम्परेचर वगैरह ऐसा कराया था मैंने, ये आप लोग ट्राई कर लीजिए एक बार। Yes, sir. 49 देख लीजिए बेटा एक बार आप लोग, क्वेश्चन नंबर 49 ट्राई कीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। 30 gram of water at 30 degrees centigrade is in beaker. Which of the following when added to the water will have the greatest cooling effect? Will have the greatest cooling effect? (47) नहीं करेंगे हम लोग, 47 ट्राई कर लेते हैं। 47 देखो बेटा, 10 gram of ice at minus 20 degrees centigrade is added to 10 gram of water at 50 degrees centigrade. The amount of ice and water that are present at equilibrium will be equal to how much? 10 gram of ice at minus 20 degrees centigrade is added to 10 grams of water at your 50 degrees centigrade. यानी मेरे पास 10 gram of your ice है at minus 20 degree centigrade is added to, मान के चलो ये कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, so we are adding, और इसके साथ हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं बेटा यहाँ पर 10 gram of your water, 10 gram of your water at 10 degree centigrade, दोनों ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग की एनर्जी आ रही है व्हाट टेम्परेचर बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी Q1, इसमें एनर्जी रिलीज होगी Q2। कोई बताएगा Q1 कितनी आएगी बेटा? Q1 इज इक्वल्स टू minus 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अपन कहाँ पर आ रहे हैं बेसिकली, कहाँ पर आ रहे हैं बेटा? minus 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर तक आ रहे हैं। तो minus 10 डिग्री 20 से पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस तक आएंगे। तो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट ms into your delta T प्लस ऑफ योर m into your there is a change from your water to this one, क्या बोलते हैं स्टेट चेंज हो रहा है ना बेटा, कितना आएगा वो? Ice to water. आइस टू वाटर मतलब कितना हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ योर आइस। Yes. से मेरे पास 10 ग्राम है, सो इट इज 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 1 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 10 इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस इज नथिंग बट इक्वल टू योर 80। तो इसके पास कितनी एनर्जी आ रही Q1, 2 1s are 8 2 10s are 10 into 10 that is your 100 plus this one is your 800, so this will be 900 calories। ठीक है, आई बात समझ में? Q2 कितना होगा बेटा? 10 gram of water at 10 degree centigrade will convert into 10 degree centigrade to 0 degree centigrade यानी ms into your delta T, बस इतनी ही एनर्जी आएगी इसके लिए। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे आने के लिए मास कितना है मेरे पास यहाँ पर 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? तो 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 50 है बेटा, सो दिस विल बी इक्वल टू 50 माइनस 0, तो ये हो गया मेरे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना आ रहा है देखो बेटा 500 आया। Yes, sir. तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा? Q2 minus of your Q1, और एनर्जी कितना आ रहा है Q1 minus of Q2, that will be equal to how much? 900 minus 500 कितना आ रहा? 400 calories। this much amount of energy has been left out। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? Q left out will be equal to your mass of your ice के पास ज्यादा है तो ice निकालेंगे हम लोग into your latent heat of your fusion। तो कितना बनेगा? कितना amount of ice will be left out in this one? So this will be equal to your 400 delta m of your ice left out into latent heat of fusion of ice कितना है बेटा 80। तो mass of your ice left out कितना हो जाएगा? ये 0 और ये 0 चले जाएगा, तो it is your 40 divided by your 8 यानी कितना आएगा बताइए ना? 5 तो 5 ग्राम ऑफ योर आइस होगा इसका। तो अमाउंट ऑफ आइस कितना हो जाएगा 5 ग्राम। सो 5 ग्राम ऑफ योर आइस होगा, तो दो ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड और सेकंड में होगा। द अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर बोल रहा है, तो इनिशियली वाटर कितना है मेरे पास देखो इसके अंदर, इनिशियली वाटर मेरे पास 10 ग्राम है और आइस कन्वर्ट हुआ, कितना आइस कन्वर्ट हुआ मेरे पास बेटा 5 ग्राम ऑफ योर आइस अभी लेफ्ट आउट है यानी 10 + 5। तो यहाँ पर वाटर कितना हो जाएगा 10 ग्राम प्लस 5 ग्राम ऑफ योर आइस। ठीक है Sir, will be taking ms delta T क्यों नहीं ले रहे सर? जो Q लेफ्ट में, कहाँ पर Q लेफ्ट में सर। Q लेफ्ट में हम लोग को मास ऑफ आइस निकालना है ना बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस कॉमन रहेगा उसके लिए,
0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी कॉमन टेम्परेचर क्या बोलते टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, कभी भी लेफ्ट आउट निकालने का तरीका क्या है अपने को, Q is equals to this relation. Okay, sir. Thank you. मास ऑफ योर आइस लिफ्ट कितना है 5, तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया बेटा, मास ऑफ योर 15. वाटर विल बी इक्वल टू 10 ग्राम प्लस 5 ग्राम, 10 में से 5 ग्राम अभी आइस बाकी है, तो 15 ग्राम ऑफ योर वाटर रह जाएगा इसके अंदर, यानी द आंसर फॉर दिस वन विल बी इक्वल टू सेकंड ऑप्शन। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 49, 30 gram of water at 30 degrees centigrade is in a beaker. Which of the following, when added to the water, will have the greatest cooling effect? Specific heat of the copper is given as of your 0.1 calorie per gram degree centigrade. Cooling effect मतलब क्या बेटा? What do you mean by cooling effect? कोई बोल सकता है? Energy released must be कम से कम हो, है कि नहीं? लाइक चलो 10 grams of water at 10 degree centigrade अगर मिस कर रहे हैं, देखो 30 gram of water at 30 degree centigrade is in a beaker. Which of the following when added to the water will have the greatest cooling effect? तो मेरे पास 30 ग्राम ऑफ वाटर ऑलरेडी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, एक बार देख लो। 30 ग्राम ऑफ वाटर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सो मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर ऑलरेडी वाटर है मेरे पास, कितना वाटर है बेटा, 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, which of the following when added to the water will have the greatest cooling effect? Specific heat of copper दे रखा है प्रॉब्लम में 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 100 ग्राम ऑफ वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिला रहा हूँ। What I am doing is I am adding 100 ग्राम ऑफ वाटर एट कितना टेम्परेचर बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले इसको कर लेते हैं, इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है देखिए, बेसिकली कितना ग्राम बेटा, 100 ग्राम, फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से दिस इज योर 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इनटू ए टेम्परेचर लूज करेगा कि गेन करेगा, लूज करे ना बेटा, लूज करके कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएगा, टी माइनस ऑफ यूर कितना है इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 grams of water will lose, 30 gram of water will, sorry 100 gram of water will gain and 30 gram of water will lose, isn't it? So that will be equal to Yes, sir. 30 into specific heat of water is 1 into ये हो जाएगा 30 minus of your T, इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ रहा है देखो, 100 into your T minus of your T is equals to 30 into your 30 minus of your T, a 0 यहाँ पर चले गया, so it is 10T minus of this will be equal to your 100 is equals to this will be 90 minus of 3 into T, all the T terms एक जगह ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा 10T plus of your 3T is equals to 90 plus of your 100, तो ये बन जाएगा मेरे पास 190, ये बन जाएगा 13T, 13T is equals to 190, so T is equals to 190 divided by 13, तो ये कितना आ रहा है देखो बेटा, 13 वंजा में जाएगा, 13 वंजा 14.6. 14.6, ये हो गया इसका टेम्परेचर, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। जब मैंने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिलाया तो मेरे पास कॉमन टेम्परेचर आया 14.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखो बेटा, 15 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्रीज ऐड करिए, अभी नेक्स्ट स्टेप ऐड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ही लिख रहा हूँ इसमें, आई एम एडिंग व्हाट राइट नाउ, 15 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें ऐड किया, तो कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा बेटा, 15 ग्राम ऑफ वाटर विल गेन एंड 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्रीज विल लूज। तो सेकेंड वन के लिए भी मैं एक बार कर देता हूँ, देख लेते हैं क्या होता है, यहाँ पर ही कर रहा हूँ, देख लीजिए 15 ग्राम है, सो इट इज 15 इंटू योर 1 इंटू योर कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा एक टी के पास, क्योंकि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, टी माइनस 0 विल बी इक्वल टू योर टी ओनली। तो नेक्स्ट वन इज 30 ग्राम ऑफ वाटर इंटू 1 इंटू ये हो गया 30 माइनस ऑफ योर टी, आई बात समझ में, ये हो गया 15T इज इक्वल्स टू योर 30 इंटू योर 30 माइनस ऑफ योर टी। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देखो बेटा, 15T is equals to 3 3s are 9, यानी this will be equal to how much for me,
ये कितना आ रहा है देखो बेटा 900. 900। तो ये सेकंड टेबल में चले जाता ना, फिर मैं इसको यहाँ पर ही सिंप्लीफाई कर लिया तो हो जाता ना। ये 15 वंजा में जाएगा, ये Sir, 15 T equal to 20 degrees. तो t इज इक्वल्स टू 2 इंटू योर 30 माइनस 2 इंटू टी, तो ये कितना बन जाएगा 3t इज इक्वल्स टू 60 बनेगा। तो t विल बी इक्वल टू 60 बाई योर 3, तो ये बनेगा कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर मैंने इसके अंदर 15 ग्राम ऑफ योर वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिलाया तो कॉमन टेम्परेचर जो आ रहा है इसका कितना आ रहा, t इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा। बात क्लियर है सभी को? अब थर्ड वन देखो बेटा। Yes, sir. अब थर्ड वन में क्या करना है अपने को, कूलिंग इफेक्ट निकालना है ना। 3 ग्राम ऑफ वाटर एट 3 ग्राम ऑफ आइस। चलो थर्ड वन अभी ऐड करें, इसके अंदर हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं 3 ग्राम ऑफ योर आइस एट 0 डिग्रीज ऐड करें हम लोग। तो इसके लिए भी वही कंडीशन आएगा, फिर से अपने को क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। 3 इंटू योर स्पेसिफिक आइस कन्वर्ट इंटू वाटर होगा तो 80 प्लस ऑफ योर 3 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इंटू टी माइनस 0 इज नथिंग बट टी, that is equals to 30 into 1 into your 30 minus of your t, कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना बताओ जल्दी से, 3 ये पूरा चले जाएगा ना बेटा, ये 3 और यहाँ पर 3 और 10, यानी दिस विल बी 80 प्लस यहाँ पर हो गया t इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बेटा 10 है ना। सो 10 into 30 that will become for me 300 minus of your 10t। आई बात समझ में? 3 1 3 चले जाएगा, 3 10 हो गए। ठीक है ना? Yes, ऑल दी टी टर्म्स एक जगह ले लीजिए। सो दैट विल बी इक्वल टू 11t आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू योर 300 माइनस ऑफ 80, यानी ये बन जाएगा अपने को 220, यानी 11t इज इक्वल्स टू 220, यानी t कितना आ रहा है देखो बेटा, t इज इक्वल्स टू योर 220 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11 2 जा यानी 20, इसका भी टेम्परेचर आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आई बात समझ में? yes, sir. चलो वेरी गुड। उसके बाद पूरे ऑप्शंस ट्राई करना है बेटा, वरना डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कर सकते हम लोग। 18 ग्राम ऑफ कॉपर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड किया अभी उसने, कितना 18 ग्राम ऑफ कॉपर है, कॉपर का स्पेसिफिक हीट दे रखा है, देखो प्रॉब्लम है 0.1 कैलोरी पर 1, तो फोर्थ वन को भी करना है मेरे को। 18 ग्राम, so 18 into specific heat of copper is nothing but 0.1 into temperature आ रहा मान के चलो T, that is equals to कितने ग्राम है 30 ग्राम of water, specific heat of water is 1 into 30 minus of your T, ये कितना आ रहा है देखो बेटा 3 ये 5 में जाएगा और ये 3 में जाएगा, isn't it? So 3 into 0.1 will become for me 0.3 into T, that is equals to 5 3 is 15, तो ये हो गया 150 minus 5 into T, all the T terms एक जगह ले लीजिए। So this will become for me 5.3 into T is equals to 150, यानी T की वैल्यू हो गई मेरे पास 150 divided by 5.3, तो ये कितना आ रहा है देख लीजिए 150 divided by 5.3, कितना आ रहा है बेटा? Twenty-eight point 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके चलो, तो अब किसमें कूलिंग इफेक्ट बताएगा बताओ बेटा। फर्स्ट में 14.6 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 20 है और उसके बाद 28 है, तो मिनिमम टेम्परेचर किसके पास है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इट शुड बी योर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड विल हैव द ग्रेटेस्ट टू कूलिंग इफेक्ट। ठीक है ना, यानी जल्दी कौन कूल जिसके पास लीस्ट है उसके पास वो ज्यादा रहेगा कूलिंग इफेक्ट। ऑब्वियसली होता है। देखो बेटा आपके पास एक चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास एक हाथ में है, एक हाथ में मान के चलो आपके पास एक गोला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एक हाथ में आपके पास गोला है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा ठंडा जल्दी होगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कूलिंग इफेक्ट जल्दी किसके पास आती? जिसके पास कम है। हाँ तो वही आंसर होगा ना फिर इसमें। ओके सर। ठीक है ना, बात क्लियर है? यस सर। चलो, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना छोड़ दिया मैंने, का एक बार कर लो ना तो उस पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए तो परेशानी है।
जल्दी से लिख लीजिए, ग्राफ मैंने नहीं बताया आप लोगों को, जल्दी से लिख लीजिए इस ग्राफ को, कॉन्सेप्ट एक बार कराया था, उसके बाद टाइम रहा तो प्रॉब्लम्स कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए बेटा, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, temperatures versus your time graph. Okay, ये देखो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। On y-axis we are taking temperature, on x-axis we are taking your time. बाहर गया। So initially it will be a straight line like this. उसके बाद then it will be a straight line like this for certain interval of a time. फिर उसके बाद slightly increase होगा, journey of IC ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद again it will become constant for small interval of a time. ठीक है, then again it will rise like this. Initially it will be a straight line like this, then a straight line like this, फिर ऐसा बढ़ेगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसे चलेगा। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसा वैसा आइस का जो फ्लो होगा ना वैसा कम होते जाएगा बेसिकली। तो मान के चलो ये यहाँ पर हो गया ए और ये हो गया पॉइंट ऑफ बी, दिस वन इज पॉइंट ऑफ सी, दिस वन इज पॉइंट ऑफ डी, दिस वन इज पॉइंट ऑफ ई। ठीक है, ए से बी तक जो स्टेट होगा दैट विल बी योर सॉलिड आइस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अब वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब जाने के लिए इट विल बी इन द स्टेट, फिर एक पॉइंट बी के पास मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, वो टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, मान के चलो T1। तो अब मेल्टिंग पॉइंट होगा, देन द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट बेटा व्हेन यू आर चेंजिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या सेम रहेगा बेटा, टेम्परेचर विल बी सेम, यानी ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। सो पॉइंट सी के पास क्या हो जाएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, isn't it? या दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं बेसिकली, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर सॉलिड प्लस ऑफ योर लिक्विड, isn't it? Only phase changes sir B to C के टाइम पे ना? Only phase change होगा, liquid solid is been converting into liquid, that is the reason temperature is remaining same, तो isothermal process हो जाएगा। C से D तक क्या हो रहा है, that is been getting converted into liquid, तो एक नया टेम्परेचर आ रहा है, वो टेम्परेचर मान के चलो मैंने ले लिया T2। ठीक है, सो ए से लेके यहाँ पर तक आने के लिए टाइम लगा T1, सी तक जाने के लिए लगा टाइम मान के चलो T2, और डी तक जाने के लिए टाइम लगा मान के चलो T3। फिर उसके बाद लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल कन्वर्ट इनटू योर, कितना हो जाएगा बेटा, स्टेट व्हेन इट इज चेंजिंग टू द स्टीम एट योर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेम रहेगा। अगेन दिस विल बी योर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो स्टेट होगा दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर लिक्विड प्लस गैस का कॉम्बिनेशन रहेगा, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं बेसिकली, एंड इट इज एट ए टेम्परेचर ऑफ योर T4। उसके बाद पूरा गैस में बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर स्टीम। ठीक है, यस सर। देखो इसके अंदर जो रेट से वो चेंज हो रहा है दैट इज नथिंग बट ऑफ योर R is equals to your dq by your dt is nothing but a for what, power, energy divided by time is nothing but power ना बेटा। ये कैसा है मेरे, देखो डेल्टा Q is equals to ms into डेल्टा T होता है मेरे पास, और यस dq is equals to हम लोग कैसे लिखते हैं, ms into your ms dt basically, यस so r dq by dt अगर यहाँ लिख रहा हूँ मैं dq by your dt, मतलब ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, r से लिख रहा हूँ, so r will be equal to your how much for me बेटा, ms how much will be? m into your s। ठीक है, ms is equals to your delta q by your delta t, delta t is what अपने पास टेम्परेचर है। अब देखो अगर मुझे इसको टाइम में लिखना है तो थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखो एक बार इसको एक बार देख लेता हूँ इसको। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 dq की वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ मैं? dq विल बी इक्वल टू रेट इनटू योर टाइम लिख सकता हूँ बेटा, रेट इनटू टाइम लिख सकता हूँ। देखो टेम्परेचर दोनों में मैंने एक ही तरह लिखा है तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, तो मैं क्या करता हूँ टेम्परेचर को कैपिटल टी से लिख लेता हूँ, तो आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगी। dq इनटू योर डेल्टा टी, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा टी, और ये हो गया dt, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है बेटा? टाइम है बेटा, isn't it? Energy by time is nothing but power. So my dq is equal to r into t लिख रहा हूँ। So therefore from equation 2 dq को लेके जाके इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, r into your dt will be equal to your ms into your dt, लिख सकता हूँ मैं ऐसा। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? r is equals to your m into your s into your dt divided by dt, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम का ग्राफ ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस वन इज योर स्लोप ऑफ योर टेम्परेचर वर्सेस योर टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पर बताओ जल्दी से, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट एस विल बी इक्वल टू योर R into dt by m into योर स्लोप, लिख सकता हूँ मैं ऐसा। Specific heat is equals to your rate divided by mass into your slope. Clear है? Yes, sir. Specific heat is equals to your rate divided by mass into slope. ये देखो एक छोटा सा पॉइंट, कन्वर्शन के अंदर हम लोग एनर्जी कैसे लिखते हैं बेटा? Q is equals to m into your L. Q is equals to what for me? R into your dt. That is equals to your m into your L. तो R इंटू टाइम अगर मैं ले रहा हूँ T2 माइनस ऑफ योर T1 इज इक्वल्स टू योर M इंटू योर L। तो इसमें से अगर मुझे लेटेंट हीट निकालना है तो लेटेंट हीट विल बी इक्वल टू योर R डिवाइडेड बाय M इंटू योर T2 माइनस ऑफ योर T1 कर लो, isn't it? यानी लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चेंज इन टाइम, और आई कैन से इट इज प्रोपोर्शनल टू योर T2 माइनस ऑफ योर T1, जैसा आपकी समझने की तरफ से वैसा। यानी लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम एंड स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। ये दोनों ग्राफ्स अपने को याद रखने। फिर से एक बार देख लो बेटा जल्दी से, यहाँ पर देखो ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ लिख रहा हूँ बेटा। सो टेम्परेचर टाइम ग्राफ के लिए फर्स्ट मैंने क्या किया, रेट ऑफ द हीट फ्लो कैसा होगी, आर इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, दैट इज नॉट एज पावर। उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला लिखा मैंने, क्यू इज इक्वल्स टू एम एस इंटू डेल्टा टी, isn't it? Q is equals to your ms into your delta t, ये वाला q delta q is equals to ms into delta t. From equation 1 I can write dq is equals to rate into your dt, ठीक है। So from equation 2 I am writing the value as r is equals to your ms into your d theta by dt। d theta by dt क्या होता है? स्लोप। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है? S is equals to rate divided by mass into slope. So specific heat is inversely proportional to mass, यानी lesser mass मतलब more specific heat, slope lesser the slope means more will be specific heat, more the rate means more will be the specific heat। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और लेटेंट हीट और टाइम का रिलेशन क्या है? लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम, लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम। देखो इस पर क्वेश्चन कैसा पूछता है अपने को, बेसिकली मान के चलो ऐसा कुछ तो उसने ग्राफ दे दिया, यहाँ से यहाँ तक एक ग्राफ है बेसिकली अपने को, ऐसा कुछ ग्राफ है। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस, अगेन उसके बाद फिर ऐसा वाला कुछ ग्राफ है, then again there is a graph like this, then again there is a graph like this, anything like this। और यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसका टाइम लग रहा है मान के चलो 4 घंटे 4 आवर्स, और ये एंगल दे रखा है 53 डिग्रीज, और ये मेरे पास सॉलिड है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लग रहा है उसको 10 आवर्स ही, सेकंड्स में ले लेता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक, तो मान के चलो ये 10 सेकेंड्स है। फिर उसके बाद 4 सेकेंड्स आया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान के चलो इसका स्लोप जो है ना 37 डिग्री से, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 20 सेकेंड्स है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 30 सेकेंड्स है। एक्स एक्सिस पे टाइम होगा और यहाँ पर अपने को टेम्परेचर होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है मेरे लिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक हीट ऑफ योर सॉलिड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ योर वेपर, यानी व्हाट यू कॉल दैट वन, लिक्विड विल बी इक्वल टू हाउ मच।
L is liquid beta. Number 2, latent heat of your melting point divided by latent heat of your vapor, ये कितना हो? जल्दी से बताओ. First angle is 53 degrees beta. स्पेसिफिक हीट और एंगल के बीच में रिलेशन क्या है बेटा? स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप. मतलब क्या? स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर tan थीटा ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर tan थीटा. यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ योर फर्स्ट वन के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू योर tan ऑफ योर 37 डिवाइडेड बाय tan ऑफ योर 53. सॉलिड के लिए देखो एंगल कितनी है? 53. लिक्विड के लिए कितनी है? यहां से यहां तक लिक्विड है, यहां से यहां तक सॉलिड है और यहां से यहां तक गैस. ठीक है ना? Yes, sir. tan 37 कितना होता है बेटा? 3/4. 3/4. 3 कितना होता है? 4/3. तो आंसर कितना आया? 9/16. इसी तरह से latent heat of your melting point divided by latent heat of your vapor or steam will be equal to, depend upon what? टाइम पे डिपेंड करेगा ना. मेल्टिंग कहां से कहां तक हो रहा है बेटा? मेल्टिंग कहां से कहां तक हो रहा है? यहां से यहां तक मेल्टिंग हो रहा है. सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड ना 4 बेटा. seconds to 10 seconds. तो यानी 10 - 4 लोगे. Time? Yes. It is 10 - 4 divided by. वेपर के लिए कहां से कहां तक हो रहा है? देखो बेटा, वेपर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? बेसिकली वेपर इज बीन यहां से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी 30 - 20. 10 seconds. या 30 - 20 यानी 6 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना आ जाएगा? 3/5. बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? Sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक वाला ले लीजिए. एक्सिस पे क्या रहेगा बेटा? टाइम. और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? ग्राफ टेम्परेचर कैपिटल T और टाइम रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल c. और ये दोनों का कॉमन टाइम है, दैट इज नथिंग बट 12 सेकेंड्स. ये सम लिक्विड ये है, B है, इसका मास है मान के चलो m और इसका मास है मान के चलो 2m. और यहाँ पर जब है इसके पास, तो इसके पास है टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर ये जब है तो इसका टेम्परेचर है मेरे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड. और क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछेगा. व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर दिस वन इज स्पेसिफिक हीट ऑफ A डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ B इज हाउ मच. अनदर क्वेश्चन इन दिस वन, लेटेंट हीट ऑफ योर A डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ B इज इक्वल टू हाउ मच. ग्राफ देखो पहले. ये वाला ग्राफ येलो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, B वाला ग्राफ ग्रीन से रिप्रेजेंट करा हुआ है. A वाला का मास m है और B वाले का मास 2m है. स्पेसिफिक हीट क्या मास पे डिपेंड करेगी बेटा? क्या स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड करेगी कि इंडिपेंडेंट रहेगी? डिपेंडेंट m/r है. डिपेंडेंट है ना बेटा. देखो S is equals to R by M into. m. हाँ सर, स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मास पे भी डिपेंड करेगी और स्लोप पे भी रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, तो आई कैन राइट हियर स्पेसिफिक हीट ऑफ योर A डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ योर B इज इक्वल्स टू, that I can write as of your tan theta of your B divided by your tan theta of your A is equals to your tan theta of your A. That's it.
This will be your tan theta of your A into this will be mass of your B divided by mass of your A. बताओ कितना होगा? tan 30 tan of B कितना आएगा बेटा? ये थीटा ऑफ योर B बनेगा. चलो यहाँ से यहाँ तक थीटा B बनेगा और यहाँ से यहाँ तक थीटा A बनेगा. चलो बताओ थीटा B will be equal to how much? tan theta is equal to how much बेटा? Opposite by adjacent. हाँ तो ये कितना है? 100 100 by 6. 100 by 6. 6 है कि 10 है? No, 10. 10. Divided by tan theta A 200 divided by 6 into mass of your B. mass of your B कितना है? 2m है. mass of your A कितना है? m है. A वाला चले गया, A वाला चले गया. M. This one is your 10 into your 2 divided by into your 6 divided by 200. तो ये वाला भी चले गया. 2 ones are 2 tens are. So this will be equal to 3 by 5. 0.6. 3 by 5. ठीक है? Is that clear? Yes, sir. अब ये वाला देखो लेटेंट हीट के लिए बोला है तो ये फॉर्मूला यूज करना है. टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है? मास पे. क्या लेटेंट हीट मास पे भी डिपेंड कर रहा है Yes. और टाइम Yes. पे कर रहा है? तो जस्ट यूज दिस रिलेशन राइट नाउ. सेकंड वन के लिए यहाँ पर लिखा हूँ. So latent heat L is equals to your R into your T2 minus of T1 divided by mass. तो अब ये दो के लिए लिखो. latent heat of your A के लिए अगर लिख रहा हूँ तो it is R into your T2 minus of T1 divided by mass of your A. So that will be equal to your R into T2 कितना है बेटा? इसके लिए देखो कैसे लिए लिख रहा हूँ मैं. एक्चुअली A के लिए लिख रहा हूँ. A के लिए 12 minus 6. 12 minus of your 6 तो ये हो गया 12 minus of your 6 divided by mass of your A कितना है बेटा? 10. देन उसी तरह से अगर हम लोग एल बी का लिख रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ बी विल बी इक्वल टू आर इनटू T2 कितना होगा? टाइम 10 minus 6. माइनस ऑफ योर ये कितना होगा? 10 minus 6. Sir, 10 minus 6. कैसा बेटा? बी के लिए ना बेटा. बी के लिए टाइम कितना है? देखो फाइनल टाइम इज 12. इनिशियल टाइम Minus 12 माइनस 10 आएगा ना. 10. 12 minus 10 divided by mass of your B will be equal to 2 times of M. ठीक है? So, अभी दोनों का रेशियो. हाँ फिर आप B के लिए लिखे हैं. क्या बोले? 12 A के लिए है ना सर? अरे देखना राजा 12 नहीं, कॉमन है वो दोनों के लिए. दोनों के लिए कॉमन है ना. ओके सर. ठीक है. ओके सर. गॉट इट. Then हाँ A divided by LB कितना हो जाए? RR gets cancelled, isn't it? तो दोनों को डिवाइड करो. R by M gets cancelled. 12 minus 6 is nothing but 6. यहाँ पर 12 minus 10 is 2 और 2 will get cancelled यानी 6 by 1 यानी ये हो जाएगा 6:1. ठीक है? Is that clear? Yes, sir. Next one. पावर वाले सवाल. टाइम है अपने पास? करण गया. ओए सॉरी सर. रिकॉर्डिंग में जा रहा है फिर आप लोग की पूरी बातें आते मेरे को नहीं मालूम. मैं तो पूरे चल रहा हूँ. चलिए देखिए बेटा. if power is constant then the same amount of heat is
provided for the same interval of time. For the same interval of your time. Okay, so हम लोग क्या कर सकते हैं? We can calculate the value per 1 second, then simply multiply by the given factor, by your given factor. That will give me the answer, isn't it? अगर power constant है, then the same amount of heat is being provided for the same interval of time दिया रखा है समझो. Then we can calculate the value for 1 second, then multiply for the given factor. That will give me the answer. मान के चलो क्वेश्चन ऐसा कुछ देगा आप लोग को. मान के चलो there is a geyser of 2100 watt का, जो घर में अपन रेटिंग लगाते हैं ना, उसका गीजर का रेटिंग. if it supplies 40 grams per second heat, okay, if it supply 40 grams of heat per second, then what is difference in temperature? What is the difference in the temperature? देखो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो. There is a geyser, इसका पावर कितना है? Power is equals to 2100 watt. Yeah, I can write P is equals to 2100. 1 watt is equals to 1 joule per second भी लिख सकता हूँ. यानी for 1 second पावर कितना है? 2100 joule है. जॉल को अगर मैं कैलोरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, so it is 2100 into calorie divided by 4.2, यानी that will be equal to 2100 divided by 42 कर दो, so that will be from me 500 calories. यानी 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी दे रहा है? 500 calories. So therefore Q is equals to M into S into your delta T, isn't it? So power is nothing but energy per second, तो T की वैल्यू के बराबर है, तो ये हो गया 500 calories. That is equals to mass कितना है मेरे पास? 40 grams. Specific heat of water कितना होता है बेटा मेरे पास? 1 into temperature difference पूछ रहा है, तो डेल्टा T निकालो. ठीक है ना? तो ये 0 और ये 0 चले गया, so डेल्टा T will be equal to 50 divided by 4. तो कितना आ जाएगा बेटा? 12.5. क्या आ गया अपना? ठीक है? Is that clear? Yes, sir. अरे जॉल्स इफेक्ट में भी मैंने थोड़ा एप्लीकेशंस लिखाया था. देखो W is equal to J into Q में this can also be the kinetic energy बेटा, half into M into V square is equals to J into Q भी हो सकता है, या that can be even potential energy भी बोला था मैंने, mg into H is equals to J into Q भी हो सकता है. अगर डिफरेंस इन द हाइट है तो mg into your H2 minus of your H1 is equals to J into Q ले लो. अगर वर्क डन में है, I can write the this W is nothing but equal to your power into time में भी लिख सकता हूँ. वर्क डन will be equal to your how much for me? Force into displacement. So force into displacement is also equal to J into Q. Or friction into displacement is equals to J into Q. Friction can be written as mu times of your mg into your S is equals to your J into Q. ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े आपके पास मेटल में होंगे, वो निकाल के एक बार करिए. यानी W is equals to J into Q में the work done can be either in the form of kinetic energy or in the form of your potential energy. ठीक है? Yes, sir. ये थोड़ा आज कर लीजिए. अगर टाइम मिला तो कल ये क्लास हम लोग 1 घंटा न्यूमेरिकल के लिए भी लगा लेंगे, ओवरऑल पूरे टॉपिक के ऊपर, सॉलिड लिक्विड्स और कैलोरीमेट्री पे. और गैसेस में देखो बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे प्रॉब्लम्स नहीं है, ग्राफ्स पे प्रॉब्लम्स नहीं है, खाली अल्फा और बीटा का जो रिलेशंस है ना, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 इनटू डेल्टा टी, और बीटा का वैल्यू रिलेशन उसी पे ही है बेसिकली. गैस लॉस वगैरह के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, बिकॉज दैट कम्स इन द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. क्योंकि एज पर द एनसीईआरटी एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, गैसेस मतलब सिर्फ दो फॉर्मूले हैं अल्फा और बीटा के, बस वही 2 फॉर्मूले लिखना है. उस पे अपने को थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है. आप अपनी मेटल भी निकाल के देख लीजिए. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग गैस लॉस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह के ग्राफ्स हम लोग कर लेंगे वो. ठीक है, चलो टेक केयर बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. जज़ाकल्लाह.